And welcome everyone to episode 15 of DigiTales. I'm Faizan Sayed, founder and CEO of East River, and today I have the extremely active activist Gibran Nasir. How are you doing, Gibran? Assalamu alaikum ji, I'm very well. Thank you for having me on the show. वालेकुम सलाम जिब्रान. तो मैं सवाल ये लोगों से करता हूँ जो हम जितने भी गेस्ट्स आए हैं who've got two very prominent careers. आपके हैं lawyer and activist. ठीक है? Pick one forever. Which one would it be? एक्टिविज्म करियर नहीं है, एक्टिविज्म लाइफस्टाइल है. करियर तो लॉ है. So and I would not pick either of them for life. I originally wanted to be a chef. I find cooking therapeutic. So if I could pick something for life, so you went from hold on. This is mind-boggling. For someone who wanted to be a chef in a kitchen, that is so therapeutic. You've gone and taken on, criminal cases in court, activism out in the open market. I mean, I'm confused. How do you go from chef to this? No, I think chef is a generous word to use for myself. I mean, I'm a struggling cook, but I still take out time to do it at times because I still find it therapeutic. So growing up, I wanted to pursue that, but somehow I got, I think, fascinated by legal shows, which used to be ample at that time on Star World and all these networks. वो interest develop हुआ. Plus, when I personally decided to do law, I also found luckily support for that from within the family. My parents were also happy with that career choice. So I think your parents are lawyers. Anyone a lawyer in your family? No, actually, I think one of the inspiration for me wanting to be a chef is that because my father belongs to the food and beverage industry. He's been a caterer all his life. So and he used to run a restaurant back in the 80s in Karachi when Karachi had a nice lifestyle and things weren't as nightlife and things weren't as bad as they were got in the 90s. But family के अंदर मैं पहला वकील हूँ and activism जो है I think that is the more of a lifestyle choice. हम सब अपना personal वक्त निकाल के कुछ ना कुछ करते रहते हैं. Some people do theater, some people do dance classes, some people fitness freaks. I find time to do these things. So for a guy, St. Michael's, then apna Lyceum, and then L'École's external program, and then you went abroad for a couple of years to Northumbria. Yes. So, someone on this track, right? Someone operating in this world. How do you come back? And then you came back and took a very sort of predictable opportunity at a very prestigious corporate law firm. Yes. Okay? So that track up to that point is very predictable. Something changed in 2014. And actually things changed. What was the trigger event? No, things changed in 2013 because I contested my first elections, which is not very well known to people, back in 2013. I was also a candidate in 2013, but of course, I had just decided on a day's notice to myself that I'm going to be contesting election. And it was still a very heartening experience in the sense that the kind of support I got. And that's where I actually got to meet some people who later on became my mentors, like the late Sabine Mahmood, who with her art gallery T2F was a tremendous support during that campaign of mine. And in my early years to actually not just agitate or advocate things or propagate things for the right reasons as well. And also, develop my own understanding because हम लोग प्रोडक्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट का, अपनी अपब्रिंगिंग का. हमारे सकाफती, समाजी, इखलाकी एक पैकेज हमें मिलता है. जितनी तालीम आपकी वालिदा और वालिद की है और जितनी तालीम या इंटेलेक्ट क्यूमुलेटिव आपके स्कूल के बच्चों का और असातिज़ा का था या आपकी यूनिवर्सिटी का था, आप उस एक्सपोजर से गुजरे हो, उस बबल से गुजरे हो, आपको उतना ही पता है. हमें लगता तो ये है कि चूंकि हम एक अपर मिडिल क्लास से अगर आ जाएंगे, बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़ के आ जाएं कि हमारे पास एक इंटाइटलमेंट है जी बात करने की, मगर बातों को पहले समझना जरूरी होता है. तो लर्निंग बहुत ज्यादा हुई है और वो सबसे ज्यादा एक ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस रहा है एक्टिविज्म का सबसे ज्यादा पाकिस्तान में. मैंने पाकिस्तान सिर्फ बचपन में जब मैं 7-8 साल का था, गर्मियों की छुट्टियों में मरी घूम लिया, नागान करान घूम लिया. हकीकी तौर पे जब मैं पाकिस्तान घूमा वो मैं एक्टिविज्म की वजह से, चाहे वो सैलाब हो, जलजला हो, बम धमाका हो, कोई केस हो किसी क्रिमिनल नौयत का, कराची से लेके पारा चिनार तक, गवादर मसलूम से लेके
आपका नॉर्थ में जहाँ भी वो इलाके हैं जाना हुआ, अपर जाना हुआ, सदर्न पंजाब जाना हुआ, एंड लोगों से मुलाकातें हुई, और लोगों के जब आप मसाइल सुनते हैं तो आपको पता चलता है कितना आप कुछ नहीं जानते, मगर एक तो क्या जिम्मेदारी यही का। वजह थी, हाँ, या क्या यही वजह थी कि 2013 में आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया? क्योंकि आपने एक दिन की नोटिस पे अगर फैसला किया तो वो ट्रिगर इवेंट क्या था उसका? मतलब ये फैसला, आप इस वो फैसले पे कैसे पहुंचे कि यार मैं कल इलेक्शन लड़ूंगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे आपको दे दूं कि जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था 2008-9 में, तब मेरा सियासत में दिलचस्पी यूं शुरू हुई थी कि मैंने पॉलिटिकल ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए थे, एंड आई वाज अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर जब टू आप लंदन डॉन में एंड। थे? अच्छा, तो हाँ, लंदन इंग्लैंड में में, हाँ। बैठ के आप लिख के बेचते थे आर्टिकल्स डॉन वगैरह में? मैं ट्रिब्यून के अंदर ब्लॉग्स भेज रहा था, मैंने अपना भी उस वक्त वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाया था। व्हेन आई केम बैक आई बिकेम अ वेरी रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू ट्रिब्यून एंड डॉन फॉर ब्लॉग्स, राइट। पॉलिटिकल ब्लॉग्स। और मेरी पहली स्ट्रीट एक्टिविज्म थी जब यहाँ कराची में प्रोटेस्ट शुरू हुए अगेंस्ट द किलिंग ऑफ हजारास इन क्वेटा, जो सेक्टेरियन वायलेंस था। एंड और व्हाट ईयर वाज जब दिस? एंड दिस वाज 2013, अर्ली 13। 2013, जनवरी और फरवरी में ये बैक टू बैक धमाके हुए थे। And what made me decide on a day's notice that I want to contest elections because I don't find any solution, political solution to the impending problems amongst the existing parties, was जो कराची में अब्बास टाउन का ब्लास्ट हुआ था। एंड हमने उसके लिए कुछ फंड रेजिंग की थी, मगर फंड रेजिंग से ज्यादा जब मैं वहां पे गया था ब्लास्ट साइट पे, एक या दो दिन बाद धमाके के, तो वहां पे वो डिस्ट्रक्शन और बहुत सारी ऐसी ट्रॉमेटाइजिंग चीजें मौजूद थी अपनी स्टेट में जो एक धमाके के बाद होती हैं। वहां पे कोई क्लीनिंग का काम शुरू नहीं हुआ था, और वहां पे जो रिलीफ वर्कर्स थे उनसे हमारी बातचीत हुई, एक डेवलप हुई अंडरस्टैंडिंग, और उनको लगा कि मैं या हम लोग यंग नौजवान इंटरेस्टेड है इसमें काम करने में। तो उन्होंने मुझे, साहब एक बुजुर्ग वहां पे थे, उनका मुझे आज तक जुमला याद है। उन्होंने कहा था, बेटा एक काम करो, हमारे एक वॉलंटियर के साथ जाओ और ये जितने भी घर तबाह हुए ना, बिल्डिंग पूरी, ये घूम घूम के आओ। मैंने कहा सर ये आबाद बर्बाद बिल्डिंग में मैं क्या देखूंगा? तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि तुम्हें यहाँ पे वो तालीम मिलेगी जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। और मेरे ख्याल में वो वही था कि आपका जो बबल का टूटना या फूटना, कुछ भी आप कह लें, आपको एहसास हुआ कि आप एक दूसरे पाकिस्तान में रह रहे हैं और एक और तबका एक दूसरे पाकिस्तान में रह रहा है। एंड दैट इज व्हाट मेड मी डिसाइड ऑन अ डेज नोटिस टू माई सेल्फ दैट I'm going to commit myself to these things and not just feel mad about them, but do something about it, whatever I can. लेकिन इसमें that's a very sort of valid example of how you got there. But सवाल ये उठता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की सक्सेस कितनी है पाकिस्तान में, और हिस्टोरिकली कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कराची जैसे शहर में सक्सेस पाई है? तो आप जब इसमें गए थे, वर यू एक्सपेक्टिंग कि यार ये मुश्किल होगा और मतलब मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन कर लेना चाहिए? देखिए, मैं तो पहली बार इनिशियली जब मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा था तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था। मुझे पता था कि मैं कोई इलेक्शन जीत तो नहीं सकता। एक आदमी एक हल्के में आके बोले 3 हफ्ते के नोटिस पे कि भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं आ गया, मुझे वोट करें। मैं कोई शहजादा तो नहीं हूँ कि मेरा राइट है। आपको लोगों को खिदमत करके दिखानी है, लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए, या आप पैसा खर्च करें उस इलाके में। मगर जो ये काम आसान है और मुफ्त है कि ट्रस्ट गेन करने में और वोट लेने में तो आपने काम दिखाना और यूरोज एक्सपीरियंस दिखाना है, मगर लोगों को बात समझाने में इतना एफर्ट नहीं लगता। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने के लिए अपने मंशूर के जरिए 2013 के इलेक्शन में आया था, और 2018 के इलेक्शन के अंदर चूंकि इसमें अरसा गुजरा काम करने का, तो जो मुझे 400 वोट मिले थे सूबाई हल्के के इलेक्शन में 2013 में, वो 6400 हो गए 2018 में। 1300% का एक इंक्रीज आया। तो एक अर्बन सेंटर के अंदर, और वो उसी काम की बेसिस पे था। और 6000 वोट मिलना और जीतना नहीं का मतलब है कि आपको और काम करने की जरूरत है और ट्रस्ट गेन करने की जरूरत है। तो मैं तो अपनी आवाम को, हल्के की या पाकिस्तान की, फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेता कि इनको नहीं पता किसको वोट करना है किसको नहीं करना। मैं कभी भी वोटर पे तनकीद नहीं करता। एवरीबडी इज वेरी pragmatic and they know exactly what they want. People want in an urban center, especially like Karachi, who are effective. एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल था लोगों के जहन में कि जी अकेला आदमी क्या करेगा। तो मैं उसका भी मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी एक्टिविज्म होती है, जो लीगल काम हो रहे हैं, जो हल्के में भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, और उस मेयार पे और लेवल पे करके दिखा रहा हूँ, और उनसे कम्पीट कर रहा हूँ जो मेरे हल्के से इलेक्शन जीते हैं, बताने के लिए कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो पार्टी मेरी ना हो, बट मैं अकेला तो नहीं हूँ। डेफिनेटली मेरे साथ एक नेटवर्क है। हम एक पार्टी की फॉर्म और शक्ल के अंदर नहीं आए, बिकॉज मेरे ख्याल में पार्टी जो है वो दोस्तों के साथ तो नहीं बनाई जाती, वो नजरियाती दोस्तों के साथ बनाई जाती है।
और वो लेकिन लोग इकट्ठे करना, ग्रूम करना टाइम यही इंडिपेंडेंट ये जो आप मेहनत लगा रहे हैं, ठीक है, आपने नजरियाती ख्याली लोग जो आपके साथ मिले हुए हैं वो साथ हैं आपके, लेकिन यही जो इंडिपेंडेंट मेहनत है और टाइम आप लगा रहे हैं, अगर आप ये वकालत में लगा देते and you started helping people who needed criminal and constitutional support and were underprivileged, don't you think you would have had a greater impact? सर जी, मुझे आप केसेस गिनना शुरू करें, हम चले कराची में गिनते हैं केसेस। कराची के इलेक्ट्रिक 2016 से शुरू करें, हीट वेव की लोड शेडिंग से लेके, और अभी 2019 में जो इलेक्ट्रिक्यूशन हुई, आप लीगल टीम देख लीजिए, हु वेंट टू कोर्ट। मलिक रियाज साहब बिन कासिम का पार्क ले गए थे, आप लीगल टीम देख लीजिए, हु वेंट टू कोर्ट। आपके फेक एनकाउंटर केस, नकीब, इंतजार, अमल, मकसूद, कराची के बड़े, आप लीगल टीम देख लीजिए, हु वेंट टू कोर्ट। मिसिंग पर्सन केस मेरे हल्के पे क्यों ना फोकस करें? तो व्हाई गो इनटू द एक्टिविज्म ऑन द ग्राउंड लेवल? इसी को लेके आगे बढ़ा के चले। ये बात तो आप एतजाज एहसन साहब से भी कर सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी वकालत भी चलाते हैं, या फरोग नसीम से भी कह सकते हैं, वो सेनेटर भी माशाल्लाह कब से और वकालत भी चलाते हैं। ये बात आप जिन्ना साहब से भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तो लेटर इन देयर करियर स्टार्ट किया था ना। नहीं, देखिए ना, जिन्ना साहब से भी आप ये बात कर सकते। जिन्ना साहब ने तो रिटर्न के फौरन बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जवान थे, उनसे कहते उस वक्त कांग्रेस वाले के भाई वकालत करो, क्या सियासत में आ गए। तो इंसान तो कंप्यूटर से तेज है मेरे ख्याल में, मल्टीटास्क करता है। देखिए, मेरा अपना मेयार मेजरमेंट का ये नहीं है कि मैं कितने ज्यादा केस करूं। मेरा मेजरमेंट का मेयार है कि अगर मेरे 10 केसेस हैं, बेशक वो प्रोबोनो है या पेड है, और वो 10 क्लाइंट हैं, अगर वो मुतमईन है कि आप हर पेशी पे आते हैं, आप हमारे केस को मुकम्मल टाइम देते हैं, आपकी एक्टिविज्म की वजह से हमारा केस डिस्टर्ब नहीं हो रहा, एंड वाइस वर्सा। सो मैंने जो कमिटमेंट की है, और मैं कभी ओवर कमिट नहीं करता। मैं जो कि मुझे ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे लाइक्स या शेयर्स के लिए फीते काटने के या बड़े बड़े ऐलान करने का शौक नहीं है। मैं जिन केसेस के अंदर, अगर मैंने 3 साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, तो वो आज भी मैं अदालत में चला रहा हूँ जब उनको मीडिया में कोई कवर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ, मशाल खान का केस था। आई वेंट टू मर्दान एंड आई स्पोक विद द फादर एंड ऑफर्ड हिम लीगल एड। ही सेड कि नहीं जी, हमारे अपने लोकल लॉयर्स हैं, इनसे काम करेंगे। कसूर पे जैनब बच्ची का वाकया था, मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया, आई वेंट टू कसूर, आई वेंट मेट अमीन साहब, जैनब फादर, एंड आई ऑफर्ड हिम लीगल एड। सो इट इज नॉट जस्ट के बस शोर मचा दिया ट्विटर पे। व्हेन आई एम एजिटेटिंग ऑन अ केस, आई कंसिडर इट अ फार बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी than just riding the wave of that online trend and then forgetting about it the next day because justice is being asked for some other victim now. And that's important. And in that light, what do you think is the most important case that is currently in the courts, जिसकी judgment से मतलब एक national impact आएगा? Which in your eyes is that case? सर देखें, बतेरे केस है ना, जो के इलेक्ट्रिक में से सबसे अहम आप क्या समझते हैं कि मतलब इसका फैसला जो होगा बड़ा इसमें इम्पैक्ट आएगा? या देखें, जरूरी नहीं कि वो मेरा केस हो, वो नहीं, जनरली कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल मैं अगर कोर्ट से बात करूँ, मैं अगर कराची की बात करूँ, तो कराची के हवाले से एक बहुत अहम केस जो उस वक्त है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आर्टिकल 148 की तशरीह के हवाले से, कि जो सिंध का लोकल बॉडीज एक्ट है वो गैर आइनी है, वो शहरी हुकूमतों को एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं दे रहा, एंड दैट इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पिटिशन एमपीएम, जमात इस्लामी और पीटीआई कुछ रहनुमाओं ने लगाई थी, and I consider that even though I'm not part of that litigation, that would impact the local body system not just in the province of Sindh, but the principles established would also be taking into consideration कि फिर पंजाब के और केपी के बलूचिस्तान के कितने अच्छे कानून हैं, because वो जो devolution of power है, लेकिन अब वो devolution of power होगी और वो public forums मिलेंगे, तो फिर वो fake encounter हो या के इलेक्ट्रिक हो या पानी की चोरी हो, टैंकर माफिया हो, people will have their own local forums to address these issues. So I believe not in fixing an incident, but creating those platforms, creating those forums where things can on auto run for improvement. तो ये पिटिशन मेरे ख्याल में फकत बहुत इंपॉर्टेंट है कराची और सिंध के हवाले से, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसका आउटकम अगर कराची के फेवर में जाता है, तो आप समझते हैं कि जो कराची के अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, we will see a drastic improvement? तो देखिए, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट तो कहीं पे भी नहीं आती। आपने अगर किसी मसले को खराब करने के लिए 40 साल दिए हैं, तो कम से कम ठीक करने के लिए 4 साल तो दें। ये 4 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। हम देखिए, कानून बदलने से पूरी ब्यूरोक्रेसी नहीं बदल जाएगी, केएमसी की, एलडीए की, एमडीए की। लोकल बॉडी का कानून बदलने से ये तमाम जो लैंड होल्डिंग इदारे हैं कराची के, वो मर्ज नहीं हो जाएंगे और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो जाएगी।
ये आपके इसके अलावा जो अलग अलग माफियाज काम कर रहे हैं पॉलिटिकल बैकिंग के साथ, डिफरेंट थिंग्स हैव टू कम इनटू मोशन, बट एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल क्या होगी? डेफिनेटली होगी। क्या हमें बेहतर फोरम मिलेंगे टू कीप स्ट्राइकिंग ऑन दोस थिंग्स एंड मेकिंग श्योर दैट दीस थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग फॉर गुड? वो डेफिनेटली होगी। क्या हम घर जाने का रास्ता सही ढूंढ लेंगे? वो रास्ता कितना भी लंबा हो और हमारे पास मर्सिडीज ना हो, हमारे पास CD70 हो, हम स्लो जा रहे हो, मगर अगर आप डायरेक्शन सही नहीं ले रहे तो आप बुगाटी में बैठ जाएं, आप गलत जगह पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल में वो जो डायरेक्शन है, वो जो हाईवे का तयन करना कि विच रोड लीड्स टू क्या कहते हैं वेल डेवलप्ड, प्रोग्रेसिव, टॉलरेंट, सिक्योर एंड इक्विटेबल कराची, जहां गरीब अमीर सबके लिए फायदे की बात हो और राइट्स की बात हो, उसके लिए मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है इस रोड का तयन करना। और इसमें एक और बीच में बात चली थी, आपने लोकल गवर्नमेंट की बात की, बीच में जो बात चली थी कि कराची शुड बी कंट्रोल्ड बाय द फेडरेशन थ्रू लेट्स से NDMA एंड दीस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब डू यू थिंक दैट वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन और द लोकल गवर्नमेंट आउटकम, अगर केस कोर्ट में हमारे कराची के फेवर में जाता है, व्हाट वुड बी द बेटर आउटकम इन द टू? सर आप मतलब कि किन इदारों से चलाएंगे? एक डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी है, क्या हम कराची को मुस्तकिल डिजास्टर की स्टेट में पाते हैं? काफी लोग तो यही समझते हैं ना, शहरी जो कराची के, क्या कि हम यहाँ पे डिजास्टर स्टेट में ही चल चला रहे गया हैं। है यहाँ पे, या नहीं देखें सर, NDMA की एक एक्सपर्टीज है ना, मुझे बताइए अर्बन डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया है उन जनरल कर्नल साहब ने, जो भी लेफ्टिनेंट साहब हैं? किया है? आर्किटेक्चर कभी पढ़ा है जिंदगी के अंदर? कभी पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कोर्स पढ़ के वो आए हैं समझने के लिए कि मामला कैसे लेके चले जाते हैं? दूसरे NDMA के पास बनाने के लिए क्या है? FWO, कि इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की छतें टपक रही थी, जाके देखें किसने बनाया है। ये DHA पूरा इन्हीं इदारों ने बनाया है ना, जहाँ के लोग आज कह रहे थे हम डूब गए, बर्बाद हो गए, 11-11 दिन तक पानी भी नहीं था, बिजली खड़ा हुआ था। तो ये कहना कि ये इदारे जिस चीज को हाथ लगा दें वो सोना हो जाता है, तो ये DHA बर्बाद क्यों हो गया? ये FWO की बनी हुई सड़कें बर्बाद क्यों हो रही हैं? तो ऐसा नहीं है, आपने जिसका काम उसी को साझे, आप ट्रस्ट करें इंस्टीट्यूशंस को, आप ट्रस्ट करें इदारों को। मुझे बताएं, कंटोनमेंट CBC comes right under the corps commander and through him goes to the defense ministry. आर्मी पंपिंग मशीन लेके आ रही है अपनी बेसिस से, कंटोनमेंट भी तो आर्मी की है, कंटोनमेंट की इन्वेंट्री में मशीनें क्यों नहीं है? जबकि कंटोनमेंट हमसे करोड़ों रुपए फीस एक्सट्रैक्ट करती है हर साल, उनके पास ये चीजें क्यों नहीं थी? तो ये कहना कि जी आर्मी बचाने आई, तो पहले मेरा ये सवाल है कि जिस अदारे के मातहत ये इलाका था वो भी आर्मी के तहत था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अज्यूम करें, सिर्फ ये ना करें कि गुड न्यूज किसमें क्या आई है। एंड इक्वली तमाम इदारों को, वो KMC हो, LD हो, सिंध गवर्नमेंट हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सबका इसके अंदर एक नुकसान, एक इन्होंने इस हिस्सा डाला है इसके अंदर। ये सिर्फ DHA CBC का तो मसला नहीं है, बट वफाक अगर चाहती ना, फर्ज करें मैं मान लूं कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि वफाक आ जाए और ये ड्रास्टिक स्टेप ले ले, जो कि मेरी नजर में तो गैर आईनी है, मगर अगर वो कोई जवाब ढूंढ ले इसके लिए, तो मैं एक सवाल ये करता हूँ कि देखें इसी CBC पे आ जाते हैं, जो 6 कंटोनमेंट है ना कराची के, दैट इज फेडरल टेरिटरी एंड दैट मेक्स हाफ ऑफ कराची। अगर आप लैंड देखें उनका कंटोनमेंट का, और फिर आप उसमें KPT शामिल कर लें, KPT इज फेडरल टेरिटरी। तो अभी मैंने रेस किया ना कि फेडरली एडमिनिस्टर करा ले, वैसे ही आधा शहर उनके पास है टेक्निकली। नहीं ना, नहीं सर, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, वफाकी वजीर शिपिंग के जो हैं, जिनके अंदर पूरी KPT का इलाका आता है, वो पिछले साल साफ कराची कैंपेन चला रहे थे। जो 3 हफ्ते वो कैंपेन ना चला सके, वो अगले 30 साल शहर चलाने की बात कर रहे हैं। 3 हफ्ते नहीं सस्टेन कर सके वो एफर्ट, उस एफर्ट के लिए भी आवाम से चंदा लिया गया। दूसरी बात, जो पूरा कराची साफ करने का दावा कर रहे हैं, क्या उनके अंदर जो KPT आता है क्या वो साफ है? क्या KPT के स्कूलों की सबकी दीवारें हैं? क्या सब स्कूलों के बाथरूम में पानी आता है और पंखे हैं? क्या वहां पे कोई कचरा कुंडी नहीं है? क्या वहां पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है? आप एक मॉडल क्रिएट करते हैं ना, जिस तरह अजीब रिजवी साहब में एक SIUT एक मॉडल है, TCF सिटीजन फाउंडेशन एक मॉडल है, यार इसको रेप्लिकेट करो, इस तरह इदारे चल सकते हैं, बन सकते हैं। KPT अगर जन्नत बना दिया होता वफाकी वजीर ने, और फिर वो बात करते कि यार आप हमें पूरा कराची तो दो, हम पूरा कराची सुधारेंगे, तो हम बात करते। जो ऑलरेडी इनकी डोमेन में इनसे नहीं संभल रहा, so how can they be considered eligible to come and rule like this? So why not give it through private public partnerships? Wouldn't that be a better model to operate? Because a private enterprise will always look out for commercial interest first and will give the best outcome. ये K Electric का एग्जांपल आपके पास है, प्राइवेटाइजेशन हो गई और फिर मोनोपोली भी आ गई है, और क्या निकला उसका? लेकिन बहुत बेहतर भी तो हुआ है। कहाँ के इलेक्ट्रिक 2006 से पहले और कहाँ के इलेक्ट्रिक आज, मतलब आप देखेंगे तो
ना सर, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। के इलेक्ट्रिक ने कितने मेगावाट ऐड कर दिए पाकिस्तान के भाई? 10,000 मेगावाट तो आपकी पिछली हुकूमत ऐड करके गई है 2013 और 18 के दरमियान में, जिससे आपकी लोड शेडिंग का मसला हल हुआ है। के इलेक्ट्रिक तो वो इदारा है कि के इलेक्ट्रिक से पहले इस्लामाबाद और लेस्को लाहौर गवर्नमेंट के इदारे आपके घर में मीटर लगा के आपको ऑन पीक और ऑफ पीक का फर्क बता रहे थे और आपको मॉडर्न डिजिटल बिल दे रहे थे। के इलेक्ट्रिक वाज द लास्ट वन टू डू दैट। ये जो आपके आईपीओज हैं गवर्नमेंट के, इनके हर साल जो है वो ऑडिट जमा होते हैं। के इलेक्ट्रिक 2016, 17, 18 का ऑडिट टाइम पे नहीं जमा करा सका। ये लेस्को के अंदर और जो इस्लामाबाद की बड़ी पावर कंपनी है, इनके कई प्रॉब्लम नहीं कि इनके खंभों में अर्थिंग नहीं है। लोग खंभा चिपकने से, लाहौर में भी बारिशें होती हैं, हम अक्सर वो फनी क्लिप्स देखते हैं ना कि शहबाज शरीफ तो पेरिस बनाएगा, देखो लाहौर डूब गया, मगर करंट लगने से लोग मर रहे हैं खंबे के नहीं। मगर प्राइवेट कंपनी के खंभों के अंदर करंट नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस ही मेजर कर लें तीनों की, वो सेफ्टी के हवाले से हो, वो रिलायबिलिटी के हवाले से हो, वो कंटिन्यूटी ऑफ पावर के हवाले से हो, ये तीनों के अंदर फेल है। देयर इज अ रीजन। तो व्हाट इज द रीजन? देखिए इसमें स्टेट इन्वॉल्वमेंट भी है, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी है। वेयर इज द इशू देन? सर इशू ये है कि अगर गवर्नमेंट का कोई होता है ना इदारा, तो उसका तो जो सी होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसकी इंक्वायरी कॉल हो सकती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम मुनस अलवी साहब को कहाँ के ऊपर अकाउंटेबल करें? उनका तो उनका बोर्ड ही अकाउंटेबल करेगा। और देखिए, एक गवर्नमेंट का इदारा जब काम करता है तो पब्लिक वेलफेयर उसका एक आइडिया होता है कि मुझे पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करना है। एक प्राइवेट इदारा जब काम करता है तो उसका सिंपल है घाटा और मुनाफा। इंसान सोचता है सवाब और गुना, प्राइवेट लिमिटेड सोचती है घाटा और मुनाफा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कराची के सारे खंभों में इसलिए अर्थिंग नहीं की थी कि आपने उसे घाटे और मुनाफे का फैसला समझा कि अगर अर्थिंग करेंगे तो इतने करोड़ रुपए लग जाएंगे, घाटा है, नहीं करेंगे और ऐसी काम चलाएंगे तो ये पैसे बच जाएंगे। एट हुज एक्सपेंस? एट योर एंड माई लाइफ एक्सपेंस। तो वो प्रायोरिटी होती नहीं है प्राइवेट कंपनीज की। Then on this basis you feel that private public partnership should not work, yet there are a lot of medical facilities, hospitals जो private public partnership पे चलते हैं and they are successful. Why is that model works there in, let's say, healthcare but not, let's say, in electricity distribution? सर उसकी वजह यह है कि आप एक मोनोपोली की तरफ चले जाते हैं ना। या तो आप अपने कंपटीशन लॉज और बेहतर करें और इन्फोर्स करें और मल्टीपल एंटिटीज को अलाउ करें मार्केट में कम्पीट करने के लिए। So maybe that's the challenge. Now it's the monopoly problem, not the private-public partnership problem. देखिए, monopoly is definitely a big problem। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस चीज में गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट स्टाफ हो, वो पब्लिक एंटरप्राइज के जरिए काम करे। जहां उनको लगता है कि वो हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, आप लेके आए प्राइवेट। आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट के ना अहल लोग हैं तो जबरदस्ती आप एक पब्लिक एंटरप्राइज के जरिए काम करें। बट देन अगेन टू इंश्योर दैट योर, बिकॉज द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो टू इंश्योर कि आप एक अच्छे काम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे तबाही कॉज ना हो, वो जो इकोसिस्टम है पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर लेते हुए कि जी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मोर प्लेयर्स बी अलाउड टू एंटर एंड कंज्यूमर शुड हैव अ चॉइस टू चूज अ सर्विस प्रोवाइडर। उस पैटर्न पे आप लेके चलते हैं, वो रेगुलेटर्स को स्ट्रांग बनाते हैं। अब आप देखिए, ये आज इस मकाम पे आ गए दैट नेपरा इज टेकिंग अ ड्रास्टिक स्टेप कंसिडरिंग whether to take away K Electric's exclusivity for distribution of Karachi's electric power, and K Electric is crying foul कि जी बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके पीछे हकीकत ये है कि ये बड़ा इंजेक्शन लगाने से पहले 5-6 साल से नेपरा छोटी छोटी रिकमेंडेशन तो छोटी छोटी हेयरिंग्स करके इनको डिस्प्रिन और पैनाडोल की गोली दे रहा था कि भाई ये गोली ले लीजिए, सिस्टमेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करते लेके आइए। तकरीबन 30 से 40 के करीब इस तरह के ऑर्डर्स हैं और केसेस हैं नेपरा की जो रिकमेंडेशन थी, जिसपे के इलेक्ट्रिक ने कोर्ट जाके स्टे ले लिया। यानी कि वो 5 साल से डिनाई कर रहे थे कि मैं पैरासिटामोल और पैनाडोल नहीं लूंगा। अब वो वक्त आ गया कि इनको इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है बिकॉज उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। हाँ, बिकॉज दे वर कंप्लीटली सो रिजिड दैट दे डिड नॉट वांटेड एनी रिफॉर्म एट एनी लेवल। सो ये एक इंटेंशन क्लियर होके आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। और हमारे यहाँ एक ये के इलेक्ट्रिक शुड बी गवर्नेंस के हवाले से जो प्लानिंग कमीशन है और जो प्राइवेटाइजेशन हमारी कमीशन है, उसके लिए एक स्टडी मॉडल केस होना चाहिए दैट हाउ कैन थिंग्स गो रॉन्ग डिस्पाइट योर बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भाई मुल्क चलाने वालों की नीयत साफ है, अहलियत से हम शक कर सकते हैं, जो कि दिल का हाल हम नहीं जानते। तो ये डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशंस ये केस स्टडी होनी चाहिए। और हमारा एक बड़ा नुकसान ये है कि हम कोई रिसर्च नहीं करते, हम कोई केस स्टडी नहीं करते, हम आने वाले वक्तों के लिए लोगों के लिए कोई गवर्नेंस मॉडल तैयार नहीं करते कि डूज और डोंट्स क्या है।
हम एक करप्ट और परवर्टेड हिस्ट्री पे चल रहे हैं, जिसमें हम एक ब्लैंक स्टेटमेंट देते हैं कि जी अयूब का दौर बहुत अच्छा था, भुट्टो का दौर बहुत बुरा था, जिया का दौर ऐसे ही था, 90 में तबाही थी, मुशर्रफ ने दोबारा स्टेबल कर दिया इकोनॉमी को। हम बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स चीजें मिस करते हैं, और जानबूझ के इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हम आज तक तयन नहीं कर पाए that what policy actually does work for Pakistan, because we're not willing to even speak truth about our history. So if you look at history and taking on that, history mein Pakistan's foundation was based on a secular state and the principle of that, and you've always taken a secular approach to your views and your activism. Do you think there is? You've not. ये नहीं जी, मैं इससे नहीं, मैंने तो लिया है, मगर ये आप कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सेक्युलर बेसिस पे बना था, ये गलत बात है। हम मिसकोट कर रहे होंगे जिन्ना साहब को। देखिए, जिन्ना साहब की सियासत शुरू होती है तकरीबन मेरे ख्याल में अर्ली 1900 में ना, 1910-11 में उन्होंने शायद कांग्रेस मेरे ख्याल में ज्वाइन की है शुरू में, और फिर टूवर्ड्स 30s में वो मुस्लिम लीग के अंदर आए हैं काफी अर्सा गुजारने के बाद, और वो अख्ताम पे आती है 1948 में। एक बंदे का 40-45 साल का सियासी करियर है, मगर हम उसे डिफाइन करते हैं 11 अगस्त की एक तकरीर से। हम भी बहुत चीजें सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखें, ये तो हम कहें हजरत मोहतरम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक एहतराम और अकीदत में हम कहते हैं, मगर हम किसी इंसान को इतने बड़े मनसब पे ना बिठा दें कि हम एक नेचुरल जो एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि हर इंसान से गलतियां भी होती हैं, हर इंसान जो है। तो आप कह रहे हैं कि कायदे आज़म in his earlier career was not secular, it was just that speech that made him sound secular. नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कायदे आज़म was a prudent politician. So he went where the opportunity was. Not even that. When addressing a particular audience, he used the points which were attracted to those audience. There are many speeches in which you will find Islamic financial system, Islamic justice system, Islamic legal system. These points have been mentioned by Jinnah Sahab. You cannot ignore that. अगर 11 अगस्त पे आपने इसरार करना है तो इस पे भी आप इसरार करें. Now there things. ये फर्क जो हम एक बारीक नहीं समझ पाते वो ये है कि देखें, सोर्स ऑफ लॉ तो डेफिनेटली कहीं से ना आएगा, या वो यूएन से आएगा, या वो अमेरिकन लीगल सिस्टम से आता, या इंग्लैंड से आता, या चाइनीज से आता, ओल्ड सिविलाइजेशन से आता, या आप रिलीजियस में ले लेंगे, रिलीजन में जो मोनोथिस्ट रिलीजन्स आपके हैं। बट पॉइंट इज कि इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वुड एवर बी दिस अ प्रायोरिटी फॉर अ जॉब कि हु इज अ मुस्लिम एंड हु इज नॉट? Would that ever be a thing to consider when considering someone's merit? So you're saying that personal beliefs should not be a part of that. तो जिन्ना साहब का ये जरूर कहना था कि देखें, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम यानी कि हम इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, मगर वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी जो नहीं होगी वो फर्क नहीं करेगी एक मुस्लिम कंज्यूमर में और एक हिंदू कंज्यूमर में। और ये यहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। इस अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद जिन्ना साहब ने बिल्कुल ही मजहब को हर तरीके से रद्द कर दिया था कि मेरे सामने तो बात ही ना करो भाई मजहब की, मेरे सामने कोई ऐसी किताब कानून की लेके आओ जो किसी यूरोपियन लिखी हो, हार्ट ने लिखी हो, या कांट ने लिखी हो, या नीत्शे ने लिखी हो, उसी को छुरी लेके आओ, हॉब्स की छुरी लेके आओ। ऐसी बात नहीं थी ना, ये बात थी कि हम अपने अंदर तासुब पैदा करें कि कौन सुन्नी है जी, और फिर सुन्नी के अंदर कौन देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस है, अच्छा जी फिर कौन शिया, और शिया में कौन इतना अशरी है, कौन इस्माइली है, कौन बोरी है, अच्छा जी फिर कौन नॉन मुस्लिम है, और नॉन मुस्लिम में बदतरीन काफिर कौन है। ये जो हमने पहराए पैदा किए हैं ना, ये जिन्ना साहब ने कहा था कि ये जहालत छोड़ दीजिए। आप ये जरूर तय करें इस्लाम को पढ़ के कि मर्डर इज अ क्राइम, थेफ्ट इज अ क्राइम, फॉल्स डेफेमेशन इज अ क्राइम, फॉल्स एलिगेशन, कहते हैं किसी की इज्जत उछालना, मॉडेस्टी खराब करना, वल्गैरिटी फैलाना इज अ getting the basics right. Getting the basics right is the key. The source of law was that, but it's लेकिन हमारे यहाँ खिलाफत के अंदर भी हम इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ते हैं that the Jews are offered at various instances कि you will be ruled by your books, but if you come to us to adjudicate your matters, then we'll apply our law to you. एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी। झंडा वहां पे खिलाफत का लहरा रहा था, नीचे वहां पे मसीही और यहूदी रहते थे, और उनके अंदरूनी मामलात के अंदर उनको अपने पर्सनल लॉ की इजाजत दी हुई थी। हमने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हम जिन्ना साहब से क्या वफा करते और क्या ऑनेस्टी अपनाते कि उनका पॉलिटिकल विजन क्या था। हमने अपने मजहब के साथ क्या किया है भाई? हमने तो वहां पे इतनी परवर्जन और करप्शन की, और हमने इतना मिसकोट किया अपने रिलीजन को, तो हम जिन्ना साहब को कैसे बख्शेंगे जहां हमने इतने बड़े वलियों को नहीं बख्शा और अल्लाह की किताब को हमने जो कहते हैं मिसकोट किया जगह जगह। ये बात सही है। और इस पे लेकिन मैं दोबारा उस बात पे आऊंगा कि आपने जो बात की थी कि जिन्ना साहब वाज लाइक एनी पॉलिटिशियन,
He was a prudent politician that spoke what the audiences wanted to hear, right? But I'm comparing it to your approach. Your approach, you've taken a secular approach. You said कि भाई मेरा approach ये है, मैं secular हूँ. You lose a bunch of audiences this way. मेरा भी अप्रोच वही है जिना साहब का है. मैंने कब कहा है कि मैं ये कहता हूँ कि आइन में ये गलत लिखा है that Allah is sovereign? मैंने कब कहा आज तक? मैंने कब कहा है कि आइन में ये गलत लिखा है that source of law is कुरान एंड सुन्ना? मैंने ये कहा है कि अगर मैं एक इलाके का एमपी या एमएलए बनता हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरे वोटर का मजहब और अकीदा क्या है. मुझे ये बताओ राइट एंड रॉन्ग क्या है. तो आप पर्सनल बिलीफ पे आ रहे हैं ना कि पर्सनल बिलीफ जो आपके दिल में है वो आपकी चीज है, बाकी काम हमने चलाना है जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली बेस्ट है. और उसी इस्लाम और आइन की रूह से अगर कोई स्पेसिफिक कानून बनता है जिससे स्पेसिफिक मजहब को फायदा पहुंचाते हैं आप, जो ऑलरेडी एक मेजोरिटी रिलीजन हो. देखिए ना, आप कोटा लॉज और रिजर्व सीट्स लेके आते हैं माइनॉरिटीज के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशनिंग देखते हुए, बाकी चीजें देखते हुए कि उनको एक इक्वल प्ले अपॉर्चुनिटी मिले. मगर जहां पे ऑलरेडी एक ताकतवर तबके को आप इन्फोर्स करा के उसके रिलीजियस व्यूज प्रायोरिटाइज करवाएंगे या नजर आएगा कि आप उनको एक एक्सक्लूसिविटी दे रहे हैं, वहां पे मैं उसको कहते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सेक्युलर हूं तो मैं कंडेम करूंगा, इसलिए भी चूंकि जिस कुरान और सुन्ना को आप कोट कर रहे हैं ये तफरीक उसमें भी अलाउड नहीं है. अब इसमें एक चैलेंज आता है. अब देखें, एक प्रॉब्लम ये आता है कि आजकल के दौर में जहां पे डिजिटल मीडिया ने प्रैक्टिकली टेक ओवर किया हुआ है लोगों का टाइम, ठीक है ना, और डिजिटल मीडिया में कोई सेंसरशिप, कोई कंट्रोल नहीं है. कोई भी कोई चीज डाल के चला सकता है, आपका नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, और ये हो रहा है. इन हालात में और इन दौर में मतलब जो एक मजहबी रुझान है जो शायद एक परवर्स है, जो अनक्लियर है, जो अनएजुकेटेड है, how can this be regulated, managed so that people are not getting the wrong information that is then tilting them to the wrong side? या देखिए, हमारे यहाँ तो दुनिया के अंदर लोग स्पेगेटी मॉन्स्टर को भी खुदा मानते हैं. कुछ है लोग मानते हैं, ठीक है, कोई फला एलियन को मानता है, कोई फला एलियन को मानता है. तो क्या हो गया अगर कोई किसी बाबा या पीर को मान रहा है? आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ हो आपको रखने का हक है, वो कितना भी परवर्टेड हो आपको रखने का हक है. मगर जब आप अपना परवर्टेड बिलीफ इम्पोज करेंगे माशरे पे, यानी कि अपने पर्सन से निकल के दूसरे के पर्सन में घुस जाएंगे, वहां पे मसला आता है. तो उसको रेगुलेट कैसे करें डिजिटल के हवाले से? देखिए, आप हेट स्पीच लॉज बना के हेट स्पीच रेगुलेट करते हैं और हेट स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. अच्छा, अब उसके अंदर भी देखें, हेट स्पीच दो तरह की है. दो तरह की ये है कि मैं अगर किसी एक शख्सियत के ऊपर एक व्यू रख रहा हूं वो एक और बात है, मगर उस शख्सियत के मानने वाले पे एक और व्यू रख रहा हूं वो एक और बात है. टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. हम तो नहीं मानते बतौर मुसलमान कि जो खुदा हिंदू मजहब में है वो हमारे खुदा हैं, हम नहीं मानते ना. मगर हम ये तो नहीं कहेंगे कि जाते जाते कि जहां हिंदू नजर आए उसे मान लो, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है. कि दो मुख्तलिफ बातें हैं. मैं आपके नजरिए से डिसएग्री कर सकता हूं, मैं आपके नजरिए, देखिए मैं आपके नजरिए को फॉलो नहीं करता, इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि मैं आपके नजरिए को गलत समझता हूं. सही समझता तो फॉलो करता ना. तो क्या टिकटॉक पे जो कंटेंट है वो चलना चाहिए इसी बेसिस पे, क्योंकि वो उनका लोगों का नजरिया है, वो शेयर कर रहे हैं, आप फॉलो ना करें? देखें, जहां पे आपको ऑप्शन है ना फॉलोइंग और अनफॉलोइंग की, वहां तो आप डेफिनेटली करें. मगर जब आप पब्लिक फोरम में कोई चीज हेट स्पीच के नाम पे छोड़ देते हैं, और हेट स्पीच हर एज के बंदे को मुतासर करती है, इवन द यंग माइंड. 8-9 साल का बच्चा भी जो है वो हेट स्पीच में आ सकता है. अभी एक ऑनर किलिंग हुई है 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर, जहां 9 साल के बच्चे को ट्रेन किया गया कि अपनी खाला को गोली कैसे मारनी है, क्योंकि अंडर 10 ईयर्स आप पे क्रिमिनल केस नहीं हो सकता. तो गोली 9 साल के बच्चे से चलवाई गई और उसको 1 साल बताया गया कि ये जो है इसने खानदान की इज्जत डबोई है, जब ये आएगी हम तुम्हें बंदूक पकड़ाएंगे, तुम्हें सर पे जाके गोली मारनी, और ये काम हुआ है. तो हेट स्पीच जो है भाई, वो तो किसी को भी इफेक्ट करेगी. मेरा एक रिलीजियस बिलीफ है जो मैं अपनी हद तक रखता हूँ, उसको मान के अपनी जिंदगी चला रहा हूँ. मगर दूसरे के ऊपर मैं जाके तनकीद करूं कि मैं इख्तलाफ किसी से रखना एक और बात है, खिलाफ किसी के होना एक और बात है. इख्तलाफ में और खिलाफ में फर्क है. वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड नॉट एवरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज एन आर्ग्यूमेंट और अ फाइट. तो ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं. हम अकीदा एक जाती पर्सनल चीज होती है. मेरे लिए तमाम अकीदे और तमाम अकीदे रखने वाले लोग मोहतरम हैं, मगर मैं उनसे कहता हूं कि यार आपका मेरा जो बाहमी मसला है ना, वो ये है कि ट्रैफिक लाइट पे कौन रुकता है, वो ये है कि गटर के ढक्कन के अंदर जो है कौन चोक करने के लिए चीजें और ईंटें डाल रहा है, वो ये है कि हम में से कुंडे लगा के बिजली कौन चोरी कर रहा है, वो ये है कि हम में से रिश्वतें कौन आम कर रहा है, और वो ये है कि हम में से कानून की पासदारी कौन कर रहा है.
क्योंकि आपके मेरा सोशल इंटरेक्शन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आइन के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी बतौर शहरी, वो इन चीजों से इम्पैक्ट होता है। वो इससे इम्पैक्ट नहीं होता कि फैजान तहज्जुद पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, फैजान ने 30 रोजे रखे थे कि 20 रोजे रखे थे, फैजान कितनी बार उम्रे में गया 1 साल के अंदर। मेरी जात पे, कराची के हालात पे, कराची के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। बट इज फैजान अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन और नॉट, एंड इज द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ अबाइडिंग और नॉट? That is what makes the society, bhai. So then, if you can establish rule of law, is that all the society needs? If you said the one thing, so because if you're a law-abiding citizen that follows the rule of law, उसमें भी चेंज है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को आप लॉ के नहीं कह सकते कि उसको फॉलो करो, ये रूल ऑफ लॉ है। नहीं, वरना तो इनैक्टेड लॉ है, मतलब पार्लियामेंट से इनैक्टेड लॉ है, उसको आप सर देखें इस तरह इन्फोर्स करवा के फॉलो करवाएं। इस तरह तो जितने भी नाजीज थे वो सही मार रहे थे यहूदियों को, उनका तो लॉ था, वो तो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे थे। लॉ तो मैन मेड होता है ना। नहीं सर, रूल ऑफ लॉ क्या है उसकी भी एक डेफिनेशन है। रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी आई है फ्रॉम द इंग्लिश लीगल सिस्टम, उसकी भी एक डेफिनेशन है, जिसका एक बुनियादी जुज ये है जो आप क्या कहते हैं, वो एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, उसी से आप कंपेयर कर लें कि जो एक इंसान के साथ सलूक होगा वही हर एक के साथ सलूक होगा, हर कोई एक ही बैरोमीटर पर नापा जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली लॉ इन्फोर्स होने के साथ ही किसी एक तबके को प्रेजुडिस नहीं कर देगा कि आप किसी के, हम कहते हैं ना कि जब भी कोई लॉ आता है तो हम कहते हैं स्टेक होल्डर डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीनी की कीमतों के हवाले से कोई लॉ लेके आ रहे हैं तो आप शुगर कंज्यूमर को भी बुलाएंगे, शुगर ट्रेडर को भी बुलाएंगे और शुगर मिल ओनर को भी बुलाएंगे। इसी तरह आप नेपरा की हियरिंग कर रहे थे तो आपने के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स को बुलाया, कराची के अवाम को बतौर के इलेक्ट्रिक कंज्यूमर बुलाया गया था। तो यानी कि कानून साजी का प्रोसेस भी वो ट्रांसपेरेंट होगा, वैसा नहीं होगा जिस तरह आज ऑर्डिनेंस के जरिए जो है 2 साल से हुकूमत चल रही है और कभी मेजोरिटी माइनॉरिटी देख के कैसे कानून ले आते हैं। मतलब कि जितने भी इस वक्त पिछले 2 साल में कानून पाकिस्तान में बने हैं, दे ऑल रिलेट टू how to empower law enforcement and the security apparatus more. None of them have to do with public welfare. So these laws, if enacted, should not count under the rule of law, in your opinion? देखिए, चूंकि पाकिस्तान का कोई भी कानून जो पार्लियामेंट पास करती है ना, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर विद द आर्ग्यूमेंट कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो हमारा फ्रेमवर्क है ना लीगल, वो हमारे हैं 2 चैप्टर्स आइन के, सॉरी चैप्टर 2 के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 आपका फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 2 आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है। तो जैसे अभी FATF का लॉ पास हुआ है, डू यू थिंक दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स वेयर यू कैन बी पिक्ड अप ऑन सस्पिशन? बिल्कुल जी, इट डज। उसके अंदर पिकअप का तो उन्होंने निकाल दिया, पिकअप का तो उन्होंने निकाल दिया। उसके अंदर जो है दूसरी चीज जो आई है कि आपकी जो सर्वेलेंस हो सकती है। So why not file a case against that? I mean, आप तो वैसे follow करते हैं इन चीजों को. I mean, you take pro bono cases and you take on such challenging issues. Why not file? मैं एक सवाल सर ये भी तो करना चाहता हूँ ना कि मुझे आप एक बात बताइए कि या तो हम ये मान के चलें कि जी कराची का एक लड़का जो है वो कश्मीर तक सारे मसले हल करेगा। मुझे हंसी आती है कि मुझे लोग कमेंट करते हैं कि जी सिंध का आईजी चेंज होता है तो आप फौरन चले जाते हैं कोर्ट में, पंजाब का आईजी 5 बार चेंज हो गया। मतलब कि पंजाब की आवाम 6-7 करोड़ है यार, उनको जरूरत होनी चाहिए कराची से कोई उठ के आ रहा है काम करने के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं दूसरी आवाम के बारे में? आप अपनी, मैंने आपसे एक बात की ना कि मैं ओवर कमिट नहीं करता, मैं नए केसेस करने के चक्कर में पुराने केसेस भी छोड़ दूं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई वुड नॉट बी डूइंग दिस लिटिगेशन बिकॉज आई फील दैट आई मे एंड अप डिफेंडिंग सम पीपल हु मे बी चार्ज्ड अंडर दिस लॉ और whose surveillance may be done under this law. So the time will come कि we will eventually be constitutionally challenging it as well. हमने तो देखे जो इस पे भी पिटिशन लगाई हुई है, जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिन्होंने इतना टर्म गुजार लिया है, आधे से ज्यादा अपना पनिशमेंट का टर्म गुजार लिया है, मगर कोर्ट अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि वो मुजरिम है कि भी नहीं, उनको फौरी बेल पे रिहा किया जाए। ऑल पाकिस्तान हमने वो पिटिशन भी लगाई हुई है। हम इसमें भी इंटरव्यूनर बनने जा रहे हैं जो आपके ये इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं केपी के अंदर, जहां लोगों को बंद करके रखा जाता है और उनका बताया नहीं जाता। सो लिटिगेशन आप देखें तो ये तो काफी फैली हुई है। बट पॉइंट इज, अगर हर मसले का हल हम सिविल सोसाइटी एक्शन में देख रहे हैं, देन वी आर एडमिटिंग दैट आवर एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैज फेल्ड। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कराची की लोकल गवर्नमेंट की पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मुत्तहिदा जमात इस्लामी और पीटीआई पार्टीज हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने डिसॉल्व की वहां पे लोकल गवर्नमेंट्स,
उसके खिलाफ जो पिटिशन है वो एक लोकल गवर्नमेंट का चेयरमैन ही यूसी का, जो डिसॉल्व हुआ था, जो कह रहा है हमें गलत आपने डिसॉल्व किया। मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रोविंशियल सर्विसेज के अंदर आप फेडरल से लोग लेके आ रहे हैं, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशन फॉलो हुई है, उसमें पिटिशनर्स आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। So it is always heartening the right people are raising their voice when they are playing the role allowed to. देखिए ना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है यार कि वी डोंट हैव द वोट्स, वी आर अ माइनॉरिटी, तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं तो माइनॉरिटी पार्टी आपके लिए भी खुले हैं। और किसी भी पार्टी के वसाइल किसी एक इंसान से ज्यादा होते हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट भी करता हूं इन पॉलिटिकल पार्टीज कम एंड डू दिस, बिकॉज दे नीड टू फाइट एट एवरी फोरम अवेलेबल फॉर सेफगार्डिंग पीपल्स राइट। I'm going to switch gears a little bit. बड़ा सियासी हमारी बातें हो गई. Let's move to a lighter note. You got engaged recently, and that engagement, which was to turn into a marriage, got delayed because of COVID. A date set yet? नहीं, हमने ओरिजिनली प्लान किया हुआ था फॉर दिसंबर, बट चूंकि ये 4-5-6 महीने लोगों के बहुत डिस्टर्ब रहे हैं एंड पीपल आर स्टिल गेटिंग बैक टू द ग्राइंड, एंड सम ऑफ माय फैमिली इज अब्रॉड, सम ऑफ Manshah's family is abroad. So we are speculating. Never know. It may just happen on time. I think good things should not be delayed unnecessarily. वैसे भी. So we are both hopeful, but we would like that at least our immediate families and our dear friends are able to make it and attend. So अगर if not this Christmas period जहाँ worldwide छुट्टी होती है, maybe the Easter period, that's the next phase where people have vacations abroad as well. So the idea is to, of course, celebrate the special day with your special loved ones, friends, and family. So now tell me this: two individuals with a very public profile getting together, does it end up eating each other's spotlight? Not at all, not at all. Because, and I'm so glad, and I think Manshah is equally glad that none of us are from each other's fraternity, because that way we don't bore each other with the same conversation and we have new things to talk about. I keep on getting to learn more things about the art form. Do you think her fraternity is more exciting than your fraternity? I think the grass is always greener on the other side. बंदा बोर भी हो जाता है ना अपनी रूटीन के साथ, तो दूसरी चीज आपको एक इंटरेस्टिंग तो लगती है हर लिहाज से। तो कभी कोई कैमियो सीन इन किसी मूवी और ड्रामा का कभी सोचा है आपने? नहीं, nothing like that of that sort. In terms of the fact कि देखें, अगर वो भी वकील होती और मैं भी वकील होता और दोनों आके अगर कोर्टों के हाल की बुराई कर रहे होते, तो नया क्या होता बात करने में। मैं भी अदाकार होता, वो भी अदाकार होती। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई एक सेम फ्रेटर्निटी में शादी करता है, they have a boring married life, but it's just that so many different things happen in her world and in my world in different ways, and we have our own set of complexities, and I do not undermine her work at any level compared to mine. वो मुकाबला तो है नहीं ना। हमारा काम है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छी नीयत से करो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें दो। तो बट एक नई चीज सीखने को मिलती है। बट अब आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे समाजी मसाइल बढ़ रहे हैं, ये दोनों फ्रेटर्निटीज का मिलना भी हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे अदाकार, हमारे मॉडल रोजाना सीडीसी के बाहर बैठे हुए होते हैं, बल्कि आजकल तो भाई कराची में नहीं। उसके अलावा भी देखें ना आप, फॉर एग्जांपल जो जेंडर पॉलिटिक्स है, ये मोस्ट डेफिनेटली सबसे ज्यादा उन्हीं खवातीन को इम्पैक्ट करती है जिनको आप जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से कहते हुए आए ये तो बुरे किरदार और घरानों की हैं। जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों के बारे में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की हीरोइनों के बारे में लोग गलत बातें करते थे कि मीडिया पे आने वाली, कैमरा के आने वाली औरत तो माशरा देखते ही गलत नजर से था। उस पर जितने भी क्रशेज हों, वो बेशक हर एक के घर में पोस्टर लगा हुआ हो, वो हर एक की महबूबा हो, मगर वो किरदार नहीं होता था। तो आप ये देखें ना कि वहां कितनी बड़ी जंग रही है इस फ्रेटर्निटी की खवातीन के लिए कि they are doing their best, they're earning a good livelihood which they deserve. So is this the new battle you plan to fight? Is this the new battle that we expect you to fight? नहीं, उस सेंस में नहीं कह रहा। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि there are so many issues which of course impact people regardless of the fraternity they are in. कि इवन अच्छी बात है कि मैं अदाकारों को भी देख रहा हूँ कि उनको एक एहसास हो रहा है, वो अपनी जो एक देखें अमेरिका में हम देखते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, celebrities get very rallied up and they take an active part to use their Hollywood charisma to promote people to come out and support the political candidate the right way, और वो एक इन्फॉर्म तरीके से बात करते हैं। आई थिंक हमारे यहाँ वो एक सेलिब्रिटी हुड तो है जो कि इस्तेमाल हुआ है और वो होता है। पीटीआई को काफी सेलिब्रिटीज ने डोज किया था लास्ट टाइम, मगर अब साथ साथ मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है, ज्यादा बेहतर आ रही है। और अब लोग जो पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे वो अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करने में ज्यादा अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, जो कि होना चाहिए। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ हिज इंडस्ट्री should be allowed to express their political views without any fear of repercussion. That is a true testament of a democratic society.
तो मुझे खुशी इस बात की कि वो भी अपनी एक व्यू, अपनी एक वैल्यू एडिशन लेके आ रहे हैं, जिसका माशरे के हर पसंद बंदे को हक है। मुझे ये बताएं, मगर do you see a restaurant in your future? Chef कभी from a commercial standpoint आप बनेंगे? That's going to be my last question before I wind up. मेरा रिटायरमेंट प्लान वही है। Gas catering business or an independent restaurant? मैं जी छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के जहाँ मैं खुद खाना पका सकूं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वन गुड थिंग इज दैट कनात है लाइफ में। आई एम नॉट इन द लीगल प्रोफेशन टू अर्न मनी, आई एम इन द लीगल प्रोफेशन टू पे माई बिल्स। मैं इस भागदौड़ में पड़ता नहीं हूँ, तो उस वजह से मुझे जो अक्सर लोग कहते हैं ना, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया, आप अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, या फला काम क्यों नहीं करे, या फला काम क्यों नहीं करे, वाई आर यू ऑलवेज टेकिंग द लॉन्ग रोड एंड वाई यू नॉट टेकिंग द मोस्ट शॉर्टर प्रैग्मेटिक वे। इज बिकॉज वो शॉर्ट लिव्ड विंस जो होती है जल्दी खत्म हो जाती हैं, जाया हो जाती हैं। आपको अपने अंदर बड़ा एक सब्र, कनात और कंटेनमेंट पैदा करनी होती है, वो आपके फाइनेंशियल हालात हो, वो आपके इकोनॉमिक हालात हो, या इवन वो आपकी फेम हो। अक्सर लोग इस चक्कर में ना कि मैं खबरों में नहीं हूँ, बेवकूफी की बातें करना शुरू करते थे जस्ट टू कम इनटू द न्यूज। सो कभी ना आप इस चीज के पीछे भागे, ना पैसे के पीछे भागे, अपनी शख्सियत में वजन रखें। एंड टफ टाइम जो आता है ना, वो आपकी ट्रेनिंग के लिए आता है, उसको अपने ट्रेनिंग के लिए लें। तो अगर वो रेस्टोरेंट आप खोलेंगे, रिटायरमेंट प्लान, और मैं ये लास्ट सवाल करूंगा क्योंकि वी ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। ये आपने पूरा पाकिस्तान आपने मेंशन किया कि आफ्टर एक्टिविज्म देखा, तो पूरे पाकिस्तान में वो रेस्टोरेंट आप कहाँ खोलेंगे आफ्टर सीइंग मोस्ट ऑफ द कंट्री? व्हाट इज दैट वन प्लेस? पूरा पाकिस्तान मेरा है, मगर मैं कराची का हूँ। That's a great note to end on. Thank you so much, Gibran. Really enjoyed talking to you. And thank you all for tuning in to episode 15 of Digitales. Stay tuned for the next one. And Gibran, look forward to connecting with you soon again. Same with you, likewise. Thank you. Pleasure talking to you.